Chalo guys, hi. Today I'm going to take revision of a contract act. Yeah. बट ये रिवीजन लेक्चर देखने से पहले आपको ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोरली एक बार पढ़ के लेना होगा, उसके बाद ये रिवीजन लेक्चर काम आएगा। वैसी बात नहीं है, इसमें भी आपको ओवरऑल व्यू आ जाएगा, लेकिन फॉर डिटेल नॉलेज आपको स्टार्ट टू एंड मॉड्यूल एक बार पढ़ना होगा। मैं आज रिवीजन ले रहे वाला हूँ ताकि आपको एग्जाम में जाते टाइम थोड़ा फास्ट रिवाइज हो सके, आपको वापस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ सके और आपकी राइटिंग एबिलिटी डेवलप हो सके। इसलिए मैं ये रिवीजन लेक्चर ले रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेक दिस रिवीजन लेक्चर यूनिट वाइज। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेक फर्स्ट यूनिट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अभी फर्स्ट यूनिट में फोकस एरिया है क्या अपना, यहाँ पे दिया है एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, essentials of valid contract, types of contract. Essentials of valid contract अपन बाद में सीखेंगे। सबसे पहले हमको क्या सीखना है, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दो ही चीजें हैं, एक है एग्रीमेंट, सेकंड है एनफोर्सेबिलिटी। गाइस, व्हाट इज मीन बाय एग्रीमेंट? क्या लगता है आपको एग्रीमेंट मतलब क्या? चलो पहले पहला पेज चलते हैं अपन। पहले पेज में इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो दिया है चार्ट दिया है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। They are given that the first part, this section 1 to 75 deals with general principles of law of contract and therefore applies to all contract irrespective of their nature. Second part from section 124 to 238 deals with special kind of contracts. Example, indemnity and guarantee, bailment, pledge, agency. Getting the point? ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पहले पेज में इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे दिया हुआ आपको, द एक्ट बेसिकली आइडेंटिफाइज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ लीगली एनफोर्सिबली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन एडिशन टू डीलिंग विद सर्टेन स्पेशल कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप लाइक इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा। इट बेसिकली डिफाइंस द सर्कमस्टेंसेस इन विच प्रॉमिस made by parties to the contract shall be legally binding on them. Okay, this unit refers to the essentials of legally enforceable agreement or contract. It set out rule for the offer and acceptance and revocation of the offer. It state और acceptance का revocation भी है यहाँ पे. It states that the circumstances when an agreement is voidable or enforceable by only one party and when the agreements are void, that is not enforceable at all. So guys, ये टॉपिक ओवरव्यू देता है कि हाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म, हाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज लीगली एनफोर्सेबल। गेटिंग द पॉइंट? कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म ऑफ टू पार्ट, one is agreement and other is its legal enforceability. Agreement क्या होता है? You know what is meant by agreement? Agreement क्या रहता है? Promise and set of promise forming consideration for each other. ये अगर रहा तो क्या बोलते बेटा इसको? Agreement. What is meant by agreement? Every promise and every set of promises forming the consideration for each other. Getting the point? यहाँ पे दिया है, कहाँ पे this. Every promise and every set of promises forming consideration for each other. This is agreement. This is given under section 2 subsection E of this act. Okay. Agreement समझने के लिए अपने को क्या समझना चाहिए? What is mean by promise? Okay. Promise is when a person or when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto. The proposal is said to be accepted. Proposal when accepted becomes a promise. समझो, hierarchy समझो। Agreement और उसकी enforceability makes a contract. Getting my point? Contract मतलब क्या? Agreement and its enforceability. Agreement में क्या बेटा? Promise and set of promises forming consideration for each other. अभी अपने को देखना पड़ेगा what is meant by promise. Promise क्या है? When a person gives a proposal to the other person
and when the other person gives his assent to that proposal, then means when the proposal which I am giving to the other person is getting accepted by that person, it becomes a promise. Getting my point? Getting my point? पक्का समझो, प्रपोजल जब एक्सेप्ट होता है तब वो प्रॉमिस बनता है। इस तरीके का प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फ्रेम करता है। कंसिडरेशन मतलब लेन देन, मुबदला, समथिंग इन रिटर्न आप बोल सकते हो इसको। तो दिस प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस व्हेन बिकम कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, then it becomes an agreement. Getting about? And when such agreement is enforceable by law or at law, becomes a contract. Getting my point? Good. यहाँ पे नीचे 4 points में दिया है, when the person to whom the proposal is made signifies his assent to that proposal, okay, which is made to him, the proposal becomes accepted. जैसे मैंने बताया, accepted proposal becomes a promise. Such promise and set of promise forming consideration for each other becomes an agreement. Such agreement, when legally enforceable, then it becomes a contract. Getting my point? यहाँ पे नीचे दिया agreement is equal to offer or proposal plus acceptance. Second part में दिया enforceability by law. An agreement to become a contract must give rise to a legal obligation, which means duly enforceable by law. और नीचे दिया है contract is equal to accepted proposal or agreement plus its enforceability by law. समझा? I told you. Agreement, enforceability. Agreement क्या होता है? Promise and set of promise forming consideration for each other. Visualize हुआ? अब ये promise क्या होता है? When I gave a proposal to the other person, he signifies his assent thereto, means a proposal once accepted becomes a promise. Such promise and set of promises becomes an agreement. Such agreement, when legally enforceable, it becomes a contract. पक्का? Good. नीचे चलते हैं अपन। Now यहाँ पे example दिया है, when A agrees with B to sell his car for 2 lakh rupees to B. मतलब A ने B से क्या किया? प्रॉमिस किया कि भाई मैं मेरी गाड़ी तेरे को 2 लाख रुपए में बेच दूंगा। अभी B ने एक्सेप्टेंस दिया, ठीक है, आई एम गोइंग टू बाय इट। ये क्या हुआ बेटा? प्रॉमिस, प्रपोजल, एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस, प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर बिकम्स एन एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ए ने बी को क्या दिया? प्रपोजल दिया, बी ने एक्सेप्ट किया, एग्रीमेंट बना, एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल है। कार बेचना कुछ इलीगल चीज नहीं है, उसके बदले पैसे दे रहा है, वो भी इलीगल चीज नहीं है, दोनों के दोनों कॉम्पिटेंट है। ओके, सो इसका मतलब यहां पे ऑब्लिगेशन राइज हो रहे। सेकेंड एग्जांपल में दिया है, फादर प्रॉमिसेस हिज सन टू पे हिम अ पॉकेट मनी ऑफ 500 रुपीज एवरी मंथ, बट बाद में फादर ने रिफ्यूज किया। बच्चे के लक्षण ठीक नहीं लगे होंगे, फादर ने बोला भाई नहीं दूंगा। अंडरस्टैंड गाइस, ये दोनों एग्रीमेंट, फर्स्ट एग्जांपल सेलिंग ऑफ कार, सेकंड एग्जांपल पेइंग द पॉकेट मनी। पर पहला एग्रीमेंट क्या है? सोशल नहीं है, इट इज अ बिजनेस एग्रीमेंट, कमर्शियल एग्रीमेंट। जो सेकंड वाला है, फादर ने बोला कि भाई मैं तेरे को पॉकेट मनी दूंगा, नाउ दिस इज अ सोशल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट इसमें काउंट नहीं होंगे। मतलब एग्रीमेंट में 2 टाइप है, सोशल के अलग है और कमर्शियल और बिजनेस के एग्रीमेंट्स अलग है। आगे चलते, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। सो द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद ओनली सच लीगल ऑब्लिगेशन which has resulted from the agreement. Such obligation must be contractual in nature. However, some obligation are outside the purview of the Contract Act. मतलब जो Contract Act में consider नहीं किए जाएंगे। Now, example 3 is most important. An obligation to maintain wife and children, an order of code of law. These are status obligation, and so out of the scope of the Contract Act. Understand the fact, what I'm saying.
कमर्शियल एग्रीमेंट इसके स्कोप में आएंगे, सोशल एग्रीमेंट सोशल होने की वजह से इसके स्कोप में नहीं आएंगे। और ये मेंटेनेंस के ऑर्डर है, मतलब आपने डिवोर्स लिया है, आपकी कोर्ट ने आपकी वाइफ को और आपको चिल्ड्रन को आपको मेंटेनेंस मंथली 10,000 15,000 देने को लगा है। ओके, नाउ दिस इज अंडर ऑब्लिगेशन ऑफ लॉ, बट ये कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप से बाहर है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी नहीं है। कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी जहां पे फ्रेम होगी वही कॉन्ट्रैक्ट के फ्रेमवर्क में आएगा। यहां पे दूसरे लॉ की वजह से आपकी लायबिलिटी आई है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के परव्यू में और स्कोप में नहीं आएगा। समझा? गुड। यहां पे दिया है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंस दिया है। अंडरस्टैंड, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसमें अदर एग्रीमेंट्स भी आते हैं, आपको मालूम है, सोशल टाइप के। बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, क्योंकि बिना एग्रीमेंट के और उसके लीगल एनफोर्सिबिलिटी के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। सो इंपॉर्टेंटली, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। गेटिंग माय पॉइंट? लीगल ऑब्लिगेशन बोला था, सोशल में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्चुअल में 100% लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा। आप देख सकते हो, इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन एंड एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट्स राइट टू द पार्टीज। यहाँ पे नेसेसरीली क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ग्रांट राइट्स टू एवरी पार्टी। समझा? गेटिंग माय पॉइंट? एग्रीमेंट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ओके, एंड कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। पहले लाइन में दिख जाएगा आपको यहाँ पे, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, दैट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। यहाँ पे एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, दैट इज एग्रीमेंट प्लस इट्स लीगल एनफोर्सेबिलिटी। गेटिंग माय पॉइंट? गुड। आगे चलते। नाउ इसेंशियल्स, पहला पार्ट हो गया। ग्राफ चार्ट में दिया है अपने को कॉन्ट्रैक्ट में एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट एंड इट्स एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ। ये अपन ने बेसिक कंसेप्ट समझ लिए। अभी हम सेकंड कंसेप्ट की तरफ जाएंगे, essentials of a valid contract. What is my essentials? इसके बिना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो आप बोल सकते हैं सर ये लीगल एनफोर्सिबिलिटी है। हाँ, दिस इज अ लीगल एनफोर्सिबिलिटी एस्पेक्ट। ओके, हमको समझना पड़ेगा ये लीगल एनफोर्सिबिलिटी में आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? सबसे पहले एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कैसे लीगली एनफोर्स होगा, हम एग्रीमेंट में ऑफर और एक्सेप्टेंस के लीगल पॉइंट्स देखेंगे। आगे चल के फ्री कंसेंट, व्हाट इज मीन बाय फ्री कंसेंट? फ्री कंसेंट इज अ कंसेंट व्हिच इज नॉट ऑब्टेन बाय कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। ये 5 पॉइंट अपन आगे चल के डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी आप एक समझो कि हमको क्या सीखना है बेटा, essentials of a valid contract. First is agreement, second is free consent, third is competency of the parties. Competency of the parties मतलब जो पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट जो कर रही है उनकी कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है क्या। कैपेसिटी माने औकात, सीधा सीधा बोला जाए तो एक तो उसका एज चाहिए 18+ लॉ के हिसाब से, सेकंड मतलब वो मेजर चाहिए, सेकंड पार्ट आएगा कि ही शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब उसका दिमाग सही ठिकाने पे चाहिए। ही शुड एबल टू जज व्हाट इज गुड फॉर हिम एंड व्हाट इज बैड फॉर हिम, मतलब रैशनल ह्यूमन बीइंग भी बोल सकते हैं हम। और तीसरा, उसको लीगली किसी लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट करने से रोकना नहीं चाहिए, मतलब कभी कभी कोई क्राइम किया है, वहां पे आपको किसी लॉ ने सजा दी है और उसकी वजह से यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इन एनी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। ये है कॉम्पिटेंसी, ये अपन डिटेल में सीखेंगे। लॉफुल कंसिडरेशन, ये भी हम डिटेल में सीखेंगे। कंसिडरेशन मतलब क्या, लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है या अनलॉफुल क्या होता है, ये हम सब आगे चल के सीखेंगे। लीगल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लीगल चाहिए गाइस। व्हाट इज मीन बाय लीगल ऑब्जेक्ट? आपका ऑब्जेक्ट किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का नहीं होना चाहिए, किसी की लाइफ को, प्रॉपर्टी को थ्रेटन नहीं होना चाहिए, किसी और टॉर्ट नहीं होना चाहिए। अलग अलग चीजें हम लोग डिटेल में सीखेंगे आगे। नाउ लास्ट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड।
यहाँ पे सेक्शंस दिए स्पेसिफिकली सेक्शन 24 to 30 एंड सेक्शन 56। सेक्शन 24, 25, 26 जो भी है हम लोग यहाँ पे सीखेंगे आगे चल के। गाइस नाउ दिस इज गिवन बाय सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दीज 6 इसेंशियल एलिमेंट्स, इसके साथ जो सेक्शन 10 में नहीं है बट वो इसेंशियल है कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। वो कौन से 2 पार्टी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने को। कोई भी बंदा खुद के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, उसके लिए एटलीस्ट कितनी पार्टी चाहिए, 2। देन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मतलब मेरे दिल में चाह होनी चाहिए कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, उससे मैं लीगली बाउंड हो रहा हूं, मेरी चाह चाहिए कि हाँ ठीक है मैं लीगली बाउंड होना चाहता हूं। देन फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, देन सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वेग नहीं चाहिए, इसका मतलब यह है मैं आप एक सिखाने वाला हूं डिटेल में। एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट जो कर रहे हो उसका परफॉर्मेंस पॉसिबल होना चाहिए। अगर परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, आगे चलते हैं। नाउ इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 10, ऑल एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट, ये जो ऊपर के इसेंशियल्स दिए इसको कंसिडर करके सेक्शन 10 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बताए। देखो आप देख सकते हो इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। मतलब क्या, कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं ये बताया सेक्शन 10 में। कौन से हो सकते हैं? इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट, मेड बाय कॉम्पिटेंट पार्टीज, मेड विद अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, then such all agreements can be treated as contracts by the purview of section 10 of the Indian Contract Act। समझ रहे हो? गुड। अभी हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे अभी हमने जो पढ़ा इसेंशियल्स वो डिटेल में दिया है। ओके, सबसे पहले दिया है 2 पार्टीज। व्हाट इज मीन बाय 2 पार्टीज गाइस? मैंने बोला नो वन कैन कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ, मैं खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, हाँ मैं दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एटलीस्ट कितनी पार्टी चाहिए? 2। यहां पे दिया वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ। गेटिंग माय पॉइंट? अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 पार्टीज, वन पार्टी मेकिंग द ऑफर एंड द अदर पार्टी एक्सेप्टिंग इट। समझे? एक पार्टी ने ऑफर देना चाहिए, दूसरे पार्टी ने उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अकेला बंदा खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। समझ गए? कंफर्म? अगर मैं ये मोबाइल आपको बेचने जाऊं तो गाइस मैं ये बेच रहा हूं और आप ये खरीद रहे हो, मतलब आई एम द सेलर, यू आर द बायर। गेटिंग माय पॉइंट? यहां पे दिया है टू कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर मस्ट बी 2 पार्टीज, वन इज सेलर एंड अदर इज बायर। द सेलर एंड बायर मस्ट बी 2 डिफरेंट पर्सन बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट बाय हिज ओन गुड। समझ रहे हो? गुड। नेक्स्ट जाएंगे, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप और ऑब्लिगेशन। बहुत सीधी सी बात है गाइस। इफ आई एम मेकिंग ऑफर टू द अदर पार्टी, मुझे मालूम है अगर वो अदर पार्टी ने उसको एक्सेप्टेंस दे दिया, हम दोनों ऑलरेडी क्या है बेटा, कॉम्पिटेंट है, ऑफर जा रही है, एक्सेप्टेंस आ रहा है, इसमें लीगल ऑब्जेक्ट है, लीगल कंसिडरेशन है, ओके, और हम कॉम्पिटेंट भी है। अभी अगर उसने एक्सेप्टेंस दे दिया तो आई विल बी नेचुरली लीगली ऑब्लिग टू परफॉर्म माई प्रॉमिस। आई हैव टू गिव परफॉर्मेंस ऑफ माई प्रॉमिस। इसलिए जो भी 2 पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के लिए आ रही है वो दोनों के दिल में इंटेंशन चाहिए कि चीज का, कि भाई इसके बाद मैं ऑफर दे रहा हूं, सामने वाले ने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो हम दोनों लीगल रिलेशन में आएंगे, लीगल ऑब्लिगेशन में आएंगे। मेरे को अपना पार्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, उसको उसका पार्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, मतलब
there must be an intention on the part of the parties to create legal relationship between them. Getting my point? Social or domestic type of agreement are not enforceable in the court of law and hence they do not result into contract. But जो भी commercial nature के transactions है, like a purchase of mobile, मैं बेच रहा हूँ, आप खरीद रहे हो, मेरा intention बेचने का है, आपका intention खरीदने का है, contract होगा. Getting my point? आगे. यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, 5th 6th 7th आप पढ़ सकते हो. या मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस क्या है? मेंटेनेंस दूसरे एक्ट में आएगा, ये स्कोप में नहीं है. उसके बाद पप्पा ने बेटे को कुछ प्रॉमिस किया है, ये भी सोशल एग्रीमेंट है, ये भी नहीं आएगा. लेकिन 7वां जो है आप देख सकते हो, ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन अ कंडीशन दैट ही मस्ट पे for the amount of goods within 30 days. Here A intended to create legal relationship with B. Hence, the same is a contract. On the failure by B for making payment on due date, A can sue him in the court of law. Getting my point? जो 7वां example है, that is creating a legal contract. Now, other formalities to be complied with in certain cases. Contract एक तो बोल के हो सकता है या लिख के हो सकता है. लीगल इफेक्ट्स के लिए देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय वर्ड ऑफ माउथ. बट इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज, ये अंडरस्टैंड करो, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन रिटन. इन केस ऑफ सर्टन कॉन्ट्रैक्ट सम अदर फॉर्मेलिटीज हैव टू बी कंप्लाइड विद टू मेक द एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल. कभी कभी किसी और एक्ट की वजह से कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है. सो in the interest of parties, written contracts are favorable. They are good in protecting the interest of the parties. हाँ, oral contract नहीं चलता है क्या? चलता है. Oral contract is also a valid contract, but for the interest of the parties in good faith, the written contract is always suggested. Getting my point? Good. आगे चलते हैं. Certainty of meaning मतलब द एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट कर रहे हैं, जो भी मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, इट शुड बी सर्टन, इट शुड बी क्लियर इन इट्स मीनिंग. कॉन्ट्रैक्ट फेक नहीं चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट है दैट शुड नॉट बी फेक, इट शुड बी ए सर्टन. यहाँ पे द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टन, नॉट वेग और इनडेफिनेट. ओके, आगे चलते हैं. यहाँ पे दिया है 8वां एग्जाम्पल, एग्रीज टू सेल बी 100 tons of oil. There is nothing certain in the order to show what kind of oil was intended for. 9th example, the XYZ Limited agrees to lease land to Mr. A for indefinite year. The contract is not valid as the period of lease is not mentioned. मतलब कोई भी अभी लीज कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कितने साल के लिए? 3 साल, 5 साल, 10 साल, पीरियड मेंशन होना चाहिए. ऑयल बेच रहे हो तो वहां पे लिखो कौन सा ऑयल है, कितने टन है, कब बेचोगे, कैसे बेचोगे. मतलब देयर शुड बी सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग. पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज. अगर किसी चीज का परफॉर्मेंस नहीं दे पाते और उसका कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो तो आपको नहीं लगता कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा? वॉइड मतलब ये लीगली एनफोर्स ही नहीं हो पाएगा. अगर किसी बंदे ने बोला कि यार ये इंसान मर चुका है 2 दिन पहले, मैं जादू करूंगा और ये इंसान को जिंदा करूंगा. आप सबको मालूम है, एजुकेटेड वर्ल्ड में आपके, यार ये प्रॉमिस परफॉर्म ही नहीं हो पाएगा. मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है. अगर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस रहा एग्रीमेंट में तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा. दैट शुड नॉट बी अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट. मतलब ऐसा द टर्म ऑफ agreement should be capable of performance. An agreement to do an act impossible in itself cannot be enforced. समझ रहे हो? Good. यहाँ पे essential एक राउंड सर्कल में दिया है, आप देख सकते हो. ये जो बोला मैंने, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, नॉट डिक्लेयर्ड एज वॉइड, लीगल फॉर्मेलिटीज, ये सब चीजें, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, इंटेंशन टू हैव लीगल रिलेशनशिप, ये सब सर्कल में दिया है. इसको याद कर लो, ये अच्छी चीज है.
एक बार इसको पूरा ढंग से पढ़ लो, यहाँ पे हर एक चीज दिया है। यहाँ पे आई लाइक दिस, आई लाइक इट टू ड्रॉ। आप देख लो अच्छे से, ओके? जो मैंने अभी बताया वही चीज है। ना ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन एग्रीमेंट, हमने पहले 5 पॉइंट्स पढ़े जो सेक्शन 10 में नहीं दिए। अभी सेक्शन 10 में जो 6 पॉइंट्स दिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, उसके बाद जो दिया है आगे एक एक चीज वो अपन देखेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? कैपेसिटी, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज void. Offer and acceptance or an agreement. First and foremost essential element of a valid contract given by section 10 is offer and acceptance or an agreement. क्या बेटा? every promise जो मैंने बोला था and set of promises forming consideration for each other is an agreement. Okay? What is meant by promise? A proposal when accepted becomes a promise. An agreement is an outcome of an offer and acceptance. समझा? जो मैंने पहले दिया था इक्वल टू प्लस बीस करके, ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ proposal accepted becomes a promise, such promise and set of promise becomes an agreement, agreement once legally enforceable becomes a contract. नीचे दिया फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब two or more persons are said to be to consent when they agreed upon the same thing in the same sense. मतलब consensus ad idem, ये एक लैटिन फ्रेज है। consensus ad idem मतलब मैं ये बोतल को ये एंगल में देख पा रहा हूं, आप ये बोतल को ये एंगल में देख पा रहे हो, ऐसा नहीं है। मेरा और आपका एंगल सेम होना चाहिए। मतलब मैं ये एंगल से देख रहा हूं तो आप भी ये एंगल से देख रहे हो, समझ रहे हो। इट इज मीन दिस मीन एज दे both the parties should agreed upon the same thing in the same sense. Okay, this can also be understood as the identity of mind in understanding the terms that consensus ad idem. Further, such consent must be free. ये जो कंसेंट है ये एक समान चाहिए, मेरे हिसाब से आपके हिसाब से, दोनों के हिसाब से टर्म्स एक समान चाहिए, एक ही मीनिंग में चाहिए। और एज वेल एज ये कंसेंट देने के बाद ये कंसेंट फ्री चाहिए। फ्री चाहिए मतलब मैंने बोला था कि 5 चीजें अगर रही, मैंने मारपीट करके कंसेंट लिया, मैंने कोर्शन किया, नहीं चलेगा। मैंने अंडर इन्फ्लुएंस किया मतलब मैं ऐसे पोजीशन में बैठा हूं कि आप मेरे को ना नहीं बोल सकते। आपके दिल में मेरे लिए रिस्पेक्ट है, आई कैन डोमिनेट योर विल। ऐसे पोजीशन पे मैं हूं, आप मेरे को ना नहीं बोल सकते, मेरे को मालूम है। मैंने बोला भाई ये कॉन्ट्रैक्ट करना है अपने को, तेरे को मंजूर है क्या? तू ना नहीं बोल सकता, मतलब तू झक मार के आ बोलने वाला है। इसको बोलते हैं अंडर इन्फ्लुएंस, ये भी नहीं चलेगा। इसके बाद फ्रॉड, मेरा उद्देश्य फ्रॉडुलेंट होगा, नहीं चलेगा। मिसरिप्रेजेंटेशन, गलती से हुआ है, फिर भी नहीं चलेगा। और लास्ट मिस्टेक मतलब गलती। गलती मतलब अगर मैं और आप एक सेंस में कोई चीज को समझ नहीं पा रहे तो हम एक सेंस में उस चीज को निभा कैसे पाएंगे? इसलिए लॉ इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। एक तो कंसेंसस एड आइटम चाहिए कंसेंट के लिए, और वो कंसेंट क्या चाहिए? फ्री चाहिए 5 चीजों से। पहला है बेटा कोर्शन, दूसरा अंडर इन्फ्लुएंस, तीसरा फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। ये हम डिटेल में पढ़ने वाले इन द 3rd यूनिट। ओके, तो सो डोंट वरी अबाउट द सेम, ये हम डिटेल में सीखेंगे। एग्जाम्पल्स दिए, आप पढ़ लो अपने हिसाब से। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, मैंने बोला था कैपेसिटी 3 चीजों के हिसाब से है। पार्टी एक तो मेजर चाहिए, इज ऑफ द मेजोरिटी, या उसके बाद साउंड माइंड का चाहिए, उसके बाद नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ विच ही इज सब्जेक्ट टू। गेटिंग माय पॉइंट? अगर ये तीनों चीजें फुलफिल कर रहा है बंदा, मेजर है, साउंड माइंड का है, डिस्क्वालिफाइड नहीं है, he can be the party to the contract. ओके, आप पढ़ सकते हो क्वालिफिकेशन ABC, आप देख लो। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, दैट इज क्विड प्रो को, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। लैटिन फ्रेज है क्विड प्रो को, समथिंग इन रिटर्न मतलब मैं कोई चीज आपसे करवा रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट है भाई, आप कोई चीज मेरे लिए कर रहे हो तो उसका मैं आपको रिजनेबल कुछ ना कुछ
पैसा बोलो या आपका कोई दूसरा काम करना मेरे को करना पड़ेगा, ये चीजें होनी चाहिए। पहले बार्टर सिस्टम थे ना, बार्टर सिस्टम चीज के बदले चीज देते थे, ओके, या सर्विस के बदले गेहूं देते थे, जवार देते थे, बाजरा देते थे, मेज देते थे। अभी हम पैसा देते हैं, मतलब यू आर डूइंग समथिंग फॉर मी, आई विल पे समथिंग टू यू, दैट इज कॉल्ड एज समथिंग इन रिटर्न। इसको बोलते हैं कंसिडरेशन। ये भी हम सेकंड यूनिट में पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये भी हम थर्ड यूनिट में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। लॉफुल कंसिडरेशन मतलब कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल, इलीगल नहीं चाहिए, अनलॉफुल नहीं चाहिए। 14 एग्जांपल पढ़ता हूं। ए प्रोमिसेस टू ड्रॉप प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट बी for robbery and B promises to restore the value of the things taken. The agreement is void as the object is unlawful. ये कैसे unlawful है, क्या है, मैं बताऊंगा। आपके घर में कोई बंदा चोरी करके गया है, आपको मालूम हुआ, आपने उसको बोला भाई मैं केस नहीं करूंगा, मेरे चीजें वापस ला दे। बंदे ने चीजें वापस ला दी, गुड, वेरी गुड, अच्छा हुआ। बिना कोर्ट के चक्कर काटे हुए, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटे हुए अपनी बस चीजें वापस आ रही है। लेकिन गाइस ये सही नहीं है, बंदे ने चोरी की है, उसको सजा मिलनी चाहिए, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। पढ़ेंगे आगे। आगे का एग्जांपल है, एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी अगेंस्ट 100 kgs ऑफ कोकेन। मतलब बंदा उसका घर बेच रहा सामने वाले को और उसके बदले क्या ले रहा, ड्रग्स, कोकेन ले रहा। चलेगा क्या, नहीं चलेगा। क्यों? सच एग्रीमेंट इज इलीगल एंड कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। ओके, देन नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट तक बताता है हमको कि यार ये एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड है। आगे चल के आगे यूनिट में अपने को डिटेल पढ़ने वाला है। सेक्शन 10 में सिर्फ इसका बेसिक्स दिया है कि भाई जो एग्रीमेंट प्रोहिबिटेड एक्सप्रेसली बोला है कि ये नहीं चलेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट उसका हो नहीं पाएगा। द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू मस्ट नॉट बी विच द लॉ itself declares to be either illegal or void. An illegal agreement is an agreement expressly or impliedly prohibited by law. A void agreement is one without any legal effects. Okay, आगे के पेज पे चलते हैं। अभी हमारा सेकंड पार्ट जो था सेक्शन 10 वाला वो कंप्लीट हो गया है। गेटिंग माय पॉइंट? अभी नेक्स्ट पार्ट जो है अपना टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओके, विल कम आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।